हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। गाइस, हिंदी में एक कहावत है, दूध का जला लस्सी को भी फूंक मार मार कर पीता है। If you're not able to understand the Hindi out here, I'll just present an analogy. So what has happened now is that RBI Grade B 2023 was really tough. We all know that. Cutoffs dropped literally from 63 to 54. That's a huge drop. Now people are kind of getting a panic that will NABARD Grade A 2023 would also be as tough as what happened in RBI, क्योंकि RBI ने इस बार लेवल बार बहुत हाई कर दिया था। So इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो कोई नहीं दे सकता। It's all about predictions, it's all about probabilities. We cannot guess it. We should be prepared for anything that can happen in the exam. आसान आ सकता है, मुश्किल आ सकता है, बहुत मुश्किल भी आ सकता है। But still, let's try to analyze what we best can as human beings. बाकी तो जो पेपर बना रहा है वही बताएगा पेपर कैसा आएगा। So अगर हम देखें RBI की, अगर मैं बात करूं, the cutoffs in the last 3 years, right, have dropped from 66 to 63 and then to 54. But यहाँ पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी that when NABARD changed the pattern in 2021, the paper was okay if the cutoff went around 55. But last year NABARD ने भी कुछ कम सरप्राइज नहीं दिया था। Last year itself, cutoffs in NABARD dropped from 55 to 41, and I hope you know this is out of 100. नहीं पता तो भैया पैटर्न देख लो सबसे पहले। So cutoffs in NABARD itself has dropped from 55 to 41 last year itself. तो last year पेपर बहुत फाड़ू आया था। Now considering के दोनों पेपर IBPS बनाती है, NABARD का भी RBI का भी, can there be further drop in the cutoffs here? वैसे इसका आंसर कोई नहीं दे सकता है, but let's try to analyze कि when the cutoffs were 41 last year, what happened actually? What made that paper tough? Can we have some learnings from it? इतना तो हम कर ही सकते हैं, right? So आपके 3 merit sections हैं, GA, ESI and ARD in the phase 1 exam. I'm only talking about phase 1 in this video. If I talk about ARD, I think last time the most surprising element was that static had a very huge weightage. 30 out of 40 marks in phase 1 ARD was static. और questions कुछ बहुत आसान नहीं आए थे। Static in itself is a big thing for students, because many students were banking only on the current affairs. So when they actually saw the static thing, it was like game over for them. So यहाँ पे हमें अब action point यही लेना है that for this year's papers we do not make the same mistake. The new aspirants should try to find out like what they can do, because last year people have suffered. So यहाँ पे ideally if you try to bifurcate this 32 marks among various sections or chapters rather, you will see that questions have been asked almost from all the chapters. There are no favorite chapters as such. But अगर आपके पास टाइम नहीं है and you are already struggling, I would say यार ये चैप्टर्स तो आप कर ही जाएं। हॉर्टिकल्चर, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, एग्रोनॉमी, क्रॉपिंग सिस्टम, फिशरीज, फॉरेस्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री। दिस इज बेयर मिनिमम विच यू शुड बी डूइंग। वैसे तो सारा ही पढ़ना चाहिए इफ यू सी द लास्ट ईयर पेपर। तो स्टैटिक का वेटेज इस बार भी ज्यादा रह सकता है, ना भी आए तो, बट यू कैन नॉट टेक दैट रिस्क। यू वुड हैव टू रीड द स्टैटिक पार्ट। Next, coming on to the GA part. GA 20 नंबर का वेटेज रखता है। There were not much surprises in the GA last year. थोड़ा टफ जरूर आया था, but there were some easy picks also. 20 में से I think 8 to 10 questions were doable if you have read the proper GA. और GA ज्यादातर 3 से 5 महीने के ही आई थी. So there is no need to go back to 10 months, 12 months in case of GA. Literally that is impossible. तो आप limited GA कीजिए, but now you have to read in depth, क्योंकि last year भी there were around 40 to 50% questions which were not easy. And now considering that IBPS is raising the level, it might happen in NABARD also. So you cannot take that risk कि आप GA ऊपर से पढ़ जाएं, one liners पढ़ जाएं. That is something you cannot afford to do. तो GA section में you need a lot of effort from your side. And the last thing is ESI. ESI में as usual static was less. 3-4 नंबर का आया था, बट व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स वेटेज इन ESI, आई थिंक द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन वाज, और ये NABARD में मैंने देखा है हर साल होता है, दे आस्क यू ओल्ड रिपोर्ट्स। मतलब ओल्ड रिपोर्ट्स मतलब ऐसा नहीं कोई 8-9 साल पुरानी, बट नॉर्मली भी से कि यार आप 5-6 महीने की फॉर फेज 1 पढ़ लो, बट लास्ट ईयर देयर वर मेनी रिपोर्ट्स व्हिच वर लाइक 8 to 9 months ओल्ड। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स में मैंने पहले भी देखा, इवन इन द ईयर 2021 आई कुड सी सम क्वेश्चंस। तो आपको यहाँ पे थोड़ा रिपोर्ट्स में इन डेप्थ जाना पड़ेगा, स्पेशली जो NABARD की रिपोर्ट्स आती हैं काफी ज्यादा। जैसे लास्ट ईयर एक रिपोर्ट थी NABARD की रीजनल रूरल बैंक्स, उसमें से क्वेश्चंस आए थे। दिस ईयर NABARD हैज रिलीज रिपोर्ट ऑन कोऑपरेटिव बैंक्स, तो प्लीज आप वो जरूर पढ़ लें।
बाकी जो स्कीम्स में से क्वेश्चन आए थे, वो काफी इन डेप्थ आए थे. स्कीम्स में से देयर वर नो इजी पिक्स लास्ट ईयर, एंड द सिमिलर थिंग यू कुड सी इन आरबीआई दिस ईयर ऑल्सो, लास्ट ईयर ऑल्सो इन आरबीआई. तो स्कीम्स का तो इट्स वेरी क्लियर दैट नो आईबीपीएस जो कि आरबीआई नबार्ड दोनों का पेपर सेट करती है, they have made their question bank in such a manner that now only tough questions will be picked up from that question bank. तो यहाँ पे प्लीज अगेन शॉर्टकट्स मत लीजिए, मैं यही बोलूंगा, बिकॉज बहुत मेहनत करके जब पेपर खराब होता है ना तो ये गलतियां याद आती हैं, इनको पहले ही सुधार लिया जाए. और कुछ एआरडी रिलेटेड क्वेश्चंस ईएसआई में है, जैसे मैंने बोला नबार्ड का एक रिपोर्ट है कोऑपरेटिव बैंक्स जो इस साल रिलीज हुआ है उसमें से आ सकता है. लास्ट ईयर इट वाज ऑन नबार्ड रिपोर्ट ऑन रीजनल रूरल बैंक्स. नबार्ड की एनुअल रिपोर्ट में से कुछ क्वेश्चन ईएसआई में आए, मतलब जो चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद एआरडी के पेपर में आएंगी, दे वर आस्क्ड इन ईएसआई. तो वैसे भी हमें तो वो करना ही है, चाहे एआरडी में आए चाहे ईएसआई में आए, एनीवेज वी हैव टू डू इट, सो दैट्स नॉट मच ऑफ अ टास्क फॉर यू. बट प्लीज रीड स्कीम्स इन डेप्थ एंड प्लीज रीड दी रिपोर्ट्स अप टू 1 year if you can, or 9 to 10 months in case of ESI. तो ये कुछ एक्शन पॉइंट्स हैं, बाकी देयर इज नथिंग टू वरी. आई थिंक पेपर का बार पिछले साल ही सेट हो चुका है. 41 जब कट ऑफ गई थी काफी मुश्किल आया था, बट स्टिल इफ यू सी हियर आरबीआई में जो कट ऑफ जा रहा है वो 27% जा रहा है, बिकॉज 54 इज आउट ऑफ 200, यहाँ पे 41 इज आउट ऑफ 100, सो यहाँ पे अभी भी 41% है. सो मे बी दिस विल कम डाउन, राइट, यू नेवर नो. बट यहाँ पे शायद इतना नहीं होगा क्योंकि इस आरबीआई में क्वांट रीजनिंग आता है विच इज लाइक रियली टफ. वहां पे तो आप 4-5 नंबर ही लेने एक मौत आ जाती है. तो यहाँ पे फिर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, तो शायद 37% तो बहुत कम होगा नबार्ड के लिए, बिकॉज देर आर नो सेक्शंस व्हिच हैव कैलकुलेशंस एंड ऑल. बट शायद ये थोड़ा सा गिर सकता है, बट यू नेवर नो. बट आइडिया इसके पेपर पिछले साल ही टफ आ चुका है, सो यू कैन नॉट एज्यूम के कुछ आसान पढ़ के जाना है. हमें बिल्कुल 100% तैयारी करके जानी, ये हमें लेके चलना है, ठीक है. और एक ये अगर आप नबार्ड के लिए अभी भी कुछ थोड़ा कंफ्यूज हैं, यू लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, दिस इज द गाइड बुक यू कैन डाउनलोड, ठीक है. दिस गाइड बुक हैज एक्चुअली ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू नबार्ड. 2-3 चीजें इसमें जो बहुत अच्छी हैं. वन इज दैट यू गेट एक्सेस टू फुल सिलेबस, even the syllabus which is not given in the notification, for example for quant and reasoning. You also get access to full book list resources here, and you also get access to the PYQs of NABARD, which are very very important for you to understand. जो मैंने अभी learning share की है, that is only based upon the previous year questions. आप और depth में analyze करेंगे, maybe you are able to gain more insights and more learnings from that which you can implement in your preparation. तो PYQs जरूर डाउनलोड कीजिए, इट कैन बी आई ओपनर फॉर यू. और ये हमारे कोर्सेज हैं नबार्ड के, राइट. नबार्ड ग्रेड ए ऑनलाइन कोर्सेज फॉर 2023. वी हैव अ गोल्ड पैकेज, वी हैव अ सिल्वर पैकेज. सो गोल्ड पैक हैज एवरीथिंग phase 1, phase 2 and interview preparation. Silver pack has phase 2 and interview preparation, but for phase 1, right, you will get subjects like ESI, ARD and GA which are anyways there in phase 2 also. मतलब क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर वगैरह नहीं मिलेगा सिल्वर पैक में. एंड दीज आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज. यू नीड नॉट रीड एनी बुक, एनी न्यूज़पेपर अपार्ट फ्रॉम दीज कोर्सेज. एंड इफ यू वांट टू चेक द सैंपल मटेरियल, यू कैन ऑलवेज गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. देयर इज अ लिंक, क्लिक ऑन दैट लिंक एंड चेक द सैंपल वीडियो बाय योरसेल्फ. सो आई टेक योर लीव एंड आई होप कि अगर आपको कोई डर होगा कि नबार्ड मुश्किल आएगा नहीं आएगा, वो निकल गया होगा, क्योंकि नबार्ड ऑलरेडी टफ आ रहा है. आपको बस वही चीज तैयारी करनी है. थोड़ा और टफ आएगा तो कट ऑफ भी गिरेगी, सो देयर इज नथिंग टू वरी. हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद.